Sir, good evening. Good evening to all students. Good evening. Good evening. Good evening. Slam. Okay, so UD sir. जी सर। हाँ सर, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि हम लोग वेट करें 1-2 मिनट का? 2 मिनट रुक जाते सर, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, 2 नो। मिनट कर 7:05 हुए, 7:07 को शुरू कर देंगे सर। ठीक है सर, ठीक है, नो इश्यू सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So we can start sir. Okay sir, okay. Now, am I visible to all? Okay. So, welcome to ICRA IAS. My name is Irshad Khan. Okay. So, UPSC notification is out, and there are two emotional things that is kindly right now it is driving you right a lot. The first thing is the excitement of the exam to those students who are giving their first time, and they have a lot of question as well with respect to the how to fill the application form and everything. Okay, and I'll address for that reason ICRA has organized this particular session for all the students. Okay, so and the second is fear also along with that. Okay, the fear it's like we can say the reason for the fear is, oh, it is very near to the exam. Now I have to buck up everything, the current affair, the static part and everything I have to do. So these things are there in the emotional aspect as well as you can say both the aspect with the students. But I'll tell you, I'll give you one advice from my side, and that is you should be focusing on, focusing on a preparation. ठीक है, ये notification जो है वो part of preparation ही है एक तरीके से. ठीक है, हाँ, लेकिन बच्चों का कुछ concern है with respect to the lot of question has came to us with respect to the filling the application form. And for that reason, we have organized this, and I'm here today. We'll have a one-to-one interaction. I'll take the questions as well from the YouTube also and from the Zoom sessions also. So we'll take it. Okay. The format of the session will be like this. I'll first explain you the
the details of the minute details that we have to keep in mind while filling the form. And in between also I'll take some questions, and in the last also I'll take some question as well. Okay. So notification is out. So what I'll do, sir, should I share the screen directly to the students so where they can see the notification, the original notification, right? Yes, sir. Okay, so you can see the original notification in here. Are you able to see this? You can see the entire screen. Is it visible to all of you? I hope it is visible to all. Okay. Now you see this is an original. We have used the original document in here. The reason is we don't want to, you just get the feeling and get the right details with respect to the, you can say whatever the application details are there in the UPSC, and you should be focusing on that detail. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको थोड़ा सा अलग अलग करके बताया है, पर मेरा मानना ये है कि, और इकरा का भी ये मानना है कि आप जो है बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही पढ़िए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिल सकती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू इज, वी कैन से, सॉरी, this is the date of issue, on which date it has been issued. So this is the basically the date that has been, okay, 1st of February 2023 has been used as the issue date. Okay, so from that date itself, you can say the filling of applications begin, and the last date for filing the application is 21st of February 2023. You can see it over here. Okay. Now, approximately 20 days they are providing you, or 21 days they are providing you to fill the application form. Now, generally what used to happen when we were actually were the candidates or the aspirants at that time, it was till midnight. Okay, 21 midnight hota tha generally, midnight 11:59 PM तक होता था ये, लेकिन अभी इन्होंने चेंज किया है कुछ सालों से, ये हो गया 6 PM तक। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये 6 PM दैट इज इन द इवनिंग ऑन द सेम डेट 6 PM तक के ये रहेगा, ठीक है, और 6 PM तक के आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। सो दिस इज द ओपनिंग डेट एंड दिस इज द क्लोजिंग डेट, दो अलग अलग डेट्स हैं। ओके, अब जनरली एक हम लोग अगर हम नीचे की तरफ और मूव करें तो हम देख सकते हैं कि यूपीएससी ने आपको क्या किया है कि कुछ और भी क्लैरिटीज यूपीएससी ने दिया है विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कि करेक्शंस का जो एक प्रोसेस है जनरली वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडिफिकेशन अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ करना है, ठीक है, तो इट इज रिटन इन हियर, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लिख करके आपको बताया है कि यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को ये देखिए आप, ठीक है। तो 7 डेज का विंडो आपको मिलेगा, ठीक है, अगर कोई भी आपको चेंजेस करना है, ठीक है, तो देयर विल बी अ विंडो ऑफ 7 डेज, ठीक है, दैट विल बिगिन फ्रॉम, जो कि बिगिन होगा आपके 22 ऑफ फरवरी से लेकर के 28 ऑफ फरवरी तक का रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 7 डेज का विंडो उन्होंने कुछ चेंज करने के लिए, कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो उन्होंने उसके लिए विंडो भी दे रखा है, ठीक है। 28 फरवरी इज नॉट द लास्ट डेट, प्लीज डू रिमेंबर दिस, ओके। और ये जो बेसिकली आपको करेक्शंस का जो टाइम मिलेगा वो बेसिकली ओटीआर जो एक नया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इस केस में आपको दिया गया है कि ओटीआर की प्रोफाइल में, ठीक है, अब ओटीआर दिखता कैसा है, आई विल शो इट टू यू आल्सो, ओके। बेसिकली ओटीआर दिखेगा कैसे, कैसे वो जो है एक्सेस किया जाता है, मैं वो तुम्हें बता दूंगा अभी। जनरली ओटीआर होता क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। पहले कैसा होता था कि यहाँ पे बेसिकली हम हर साल हमें पूरा डिटेल सबमिट करना पड़ता था। जनरली बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम में, सारे स्टेट्स के, मोस्टली एवरी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में ये बात हो गई है कि आप एक बार अपना डिटेल फिलअप कर दीजिए, ठीक है, और अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या ओटीआर प्रोफाइल का जो भी आपका कोड है वो याद रखिए, उसका पासवर्ड याद रखिए। जब आपको दोबारा अप्लाई करना है तो आप सिर्फ ओटीआर नंबर डाल करके और
वही पुराना इंफॉर्मेशन जो आपने दिया है इनिशियली ओटीआर फिल करने के टाइम पे, आप वही इंफॉर्मेशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर दें। अब उस इंफॉर्मेशन में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है एज सच, ठीक है। लेकिन मान लो आप अगर एससी और एसटी भी हैं तो भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ओबीसी है तो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वहां पे, ठीक है। और वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब रिजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे, जिनको रिजर्वेशन मिले हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस में आपको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। और हैंडीकैप के सर्टिफिकेट्स में आपको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि आज आप हैंडीकैप नहीं है, इस साल आप नहीं थे जिस साल आपने ओटीआर बढ़ा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि आप हैंडीकैप की कैटेगरी में चले गए, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि बेसिकली वो क्लियरिटी वो बेसिकली उसके लिए किया गया है, ठीक है। तो खाली बहुत माइनर चेंजेस है जिसको आप करने की जरूरत, लेकिन आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आज से जरूरत नहीं पड़ती अनलेस यू आर नॉट फॉलोइंग इनटू द पीएच कैटेगरी, ठीक है, तब जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन के केस में हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बेस्ड है। एक ईडब्ल्यूएस प्योरली इकोनॉमिक है और क्या नाम है ओबीसी में कम्युनिटी बेस्ड है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि उसमें कुछ आपको सर्टिफिकेट कब प्रोवाइड करना है कब नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द करेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ओटीआर में क्या करेक्शन है, ओटीआर होता कैसा है, इट सिंपली एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप नाम डाल सकते हैं। सर मैं ओटीआर बच्चों को दिखाना चाहूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये बेसिकली विजिबल है या नहीं है। स्क्रीन विजिबल है सर ये पूरा? ये सर स्क्रीन विजिबल है। 154% का थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो और अच्छा दिखेगा। 154 को बढ़ाना पड़ेगा सर जी अभी थोड़ा सा ये? और बढ़ा। थोड़ा सा, ठीक है सर, मैं देखता हूँ कि वो कैसे बढ़ेगा। मैं जब वापस से मैंने गूगल ओपन किया तो वहां दिख रहा है आपको? नहीं सर, आपको स्क्रीन शेयरिंग में जाके वो वाला सेलेक्ट गूगल करना गूगल होगा। वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा जी ना, जी। ठीक है। मैं वापस से इसको स्टॉप करके फिर से शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नाउ इज इट विजिबल टू ऑल? ठीक है। देखो, जब आप यूपीएससी में जाएंगे, ठीक है, तो जनरली मैं डायरेक्टली गूगल से चला गया यूपीएससी के अंदर, ओके। तो यू सी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू क्लिक ऑन दिस। तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। अब जनरली इससे पहले किसी ने ओटीआर भरा नहीं है, ठीक है, या किसी ने भरा होगा तो मेरे ख्याल से दिस ईयर वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे आर एक्सपेक्टिंग द ओटीआर, ओके। दिस ईयर इज द फर्स्ट टाइम दे आर एक्सपेक्टिंग द ओटीआर। तो जनरली ओटीआर किसी का नहीं है अभी, ठीक है। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन ऐसा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप क्लिक करें नया रजिस्ट्रेशन, ये पूरा पेज आपका ऐसा खुलेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा पेज आपका ऐसा खुलेगा, ओके। ये ये बेसिस है आपका ओटीआर को फिल करने का। इसमें जो सबसे बड़ा हमारे पास में जो क्वेश्चंस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओटीआर वो ये है कि नाम को लेकर के है। सर ये नाम जो है एज पर द क्लास 10th के नाम के हिसाब से हमें डालना है, ठीक है। लेकिन सर मेरा जो 12th के एग्जाम में मेरा सर्टिफिकेट में नाम अलग हो गया या उसमें डेट कम हो गया, ज्यादा हो गया, ग्रेजुएशन में हमने और भी कम कर दिया, मान लो पहले फादर का नाम भी साथ में लिखते थे, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यू डोंट हैव टू फियर विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एज पर द यूपीएससी नोटिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बेसिकली होगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेरा आपसे सजेशन ये होगा कि आपका जो अपना नाम है, जो क्लास 10th में सिर्फ आपका नाम, मान लो कि हमें पूरा नाम लिखा है, जैसे मेरे फादर का, मेरा पूरा नाम ऐसा लिखा जाता है खान इरशाद मोहम्मद इशाक खान, तो मेरे फादर का नाम भी उसमें एडेड है, ठीक है। तो जनरली सिर्फ मुझे अपना नाम लिखना है, क्यों? क्योंकि फादर के नाम के लिए जगह उसने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि आप फादर का नाम भी अपने नाम के साथ लिख दें, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि मेरा पूरा नाम इरशाद अहमद खान है, ठीक है, वो मेरा पूरा नाम है, या सिर्फ मेरा नाम इरशाद है, जैसे यहाँ पे दो कॉलम है, एक आपका नाम और एक फुल नेम। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली खाली लिख सकता हूँ कि ठीक है, माई नेम इज इरशाद, ओके, माई फुल नेम इज इरशाद अहमद खान। हालांकि ये भरा नहीं जाएगा, आई एम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, उससे अलग हूं मैं,
तो मैं पूरा नाम अपना ऐसा लिखूंगा, मेरे फादर का नाम मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने लिए किसी का, जैसे कि यहाँ पे इरशाद अहमद भी मेरा पूरा नाम है, ठीक है सर, खान इज माई सरनेम, आई राइट अहमद, अहमद अलॉन्ग विद दिस, आई विल नॉट राइट द सरनेम, नीचे फुल नेम। इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या मान लो कि इसके रीजन पे आपको कभी भी हटाया नहीं जाएगा कि इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ये देखना है आपको। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 नोटिस में क्या लिखते हैं वो लोग, द नेम एज द रिकॉर्ड इन द मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसा वहां लिखा है आपको वैसे लिखना है। प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स दैट इज सच एज मिस्टर और मिसेस एक्सेट्रा अनलेस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 लेटर, ठीक है। एज द 4 लेटर आर मैंडेटरी फॉर द, 3 लेटर है, unless it consists only 3 letter, as 4 letter are mandatory for the name field, 4 लेटर हमें जरूरी है मैंडेटरी फील्ड के लिए, मैंडेटरी है वो। इफ योर नेम इज एक्सीडिंग 30 कैरेक्टर प्लीज रीड द FAQ। अच्छा 30 कैरेक्टर का नाम अगर आपको एक्सीड हो रहा है 30 कैरेक्टर से ज्यादा, तो आपको अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, अलग से आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। जनरली मेरे दोस्तों के साथ में ऐसा होता था कि मुस्लिम्स में थोड़े बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है, तो उनका नाम बड़ा बड़ा हो जाता था, तो उनको 30 कैरेक्टर के ऊपर जाते थे, तो उन्हें जो है बेसिकली एक अलग सा फॉर्म आता है, वो फॉर्म उनके FAQ में आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसने बोला कि रेफर FAQ, तो यू कैन सी FAQ हियर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें अगर 30 कैरेक्टर इंक्लूड दिस, सी दिस नाउ, what should I do if the name is more than space limit of 30 कैरेक्टर, क्योंकि नाम की जो कैरेक्टर लिमिट है, स्पेस लिमिट है, वो 30 कैरेक्टर की ही है, इंक्लूडिंग योर स्पेस ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूडिंग योर स्पेस ऑल्सो। तो आपको एक अलग से जो है फॉर्म उसके लिए स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा या भर करके आपको भेजना पड़ेगा अंडर सेक्रेटरी, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसमें आप ना ही उलझे तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज माय एडवाइस टू यू पीपल, ओके। क्योंकि उन्होंने नाम फिर फुल नेम, वो जब आपका नाम बोले तो नाम में नाम लिख दो, फुल नेम जब वो कह रहे हैं ना तो आप उसमें पूरा लिख दो, दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। दिक्कत ऐसे नहीं आती है इसके अंदर, ठीक है, नाम को लेकर के। जनरली मुस्लिम्स के नाम्स में ये दिक्कत आ जाती है कभी कभी, हमने देखा है, हमने फेस भी किया है ये प्रॉब्लम, तो ये होता है कभी कभी। सो आई विल एडवाइज यू कि इसके लिए डरने की जरूरत आपको एज सच नहीं है, ठीक है, एज सच डरने की कोई जरूरत नहीं। तो आपका OTR फॉर्म ऐसा दिखेगा, ठीक है। जितने भी एस्ट्रिक मार्क दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ देखिए ये एस्ट्रिक मार्क है, ये एस्ट्रिक मार्क है, ये एस्ट्रिक मार्क है, जितने भी एस्ट्रिक मार्क वाले कॉलम्स हैं वो आपको मैंडेटरीली भरने हैं, ठीक है। ये आप सबमिट करेंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके आपको OTP के सेक्शन में ले जाएगा वो, आपको अपना OTP डालना है, मोबाइल में जो OTP मिला होगा आपको वो डालना है, ठीक है। और आपको जो OTP ईमेल आईडी में डालना मिला है वो डालना है, वो दोनों OTP डाल करके आप सबमिट करेंगे, आपका OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, देन यू विल गो बैक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक फ्रेश पेज खोलना है और वापस से फ्रेश पेज खोल करके आपको ऐसा दिखाई देगा वापस से, नाउ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और OTR आईडी तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, क्लिक करिए गेट OTP पे और अपना OTP डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड डाल के आप लॉगिन करिए। फिर उसके बाद पूरा डिटेल्ड फॉर्म उसके बाद भरा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है जो आपको याद रखनी है, ये है कि जो आपको नया जो रजिस्ट्रेशन OTR जो मिल रहा है, इसको आपको कुछ ऐसे ईमेल आईडीज में डालना है, वो ऐसा ईमेल आईडी देना है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, ठीक है। क्योंकि दोबारा जब आप नेक्स्ट ईयर, मान लो कि नेक्स्ट ईयर आप जा रहे हैं फिर से फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में आपको उसी OTR से डाल करके फिर से डायरेक्टली आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू। तो ये बेसिकली आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो इसको याद रखिए आप लोग अभी, ठीक है, प्लीज याद रखना, भूलना नहीं है इसे आप लोग को, ओके। बाकी पेमेंट डिटेल जो है, बाकी जो वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो सारी चीजें जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे उसके बाद आएगा, ठीक है। रिमेंबर दिस पार्ट ऑल ऑफ यू, ओके। सो दिस वाज how you will be accessing the website of the UPSC with respect to the OTR also and with respect to the other things also, the login and the other part also. Okay. I have the questions over here in the chat box, but I'll take it later. Okay. First, I'll give you the brief on everything with respect to the notification. Okay. Now, आपको मैंने लास्ट डेट बता दिया,
मान लो कि ओटीआर में आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, आपको बाद में याद आया कि आपसे गलती हुई है, यू रियलाइज इट वेरी लेटर, ठीक है, फॉर्म सबमिट सबमिट बटन दबा दिया, पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपको याद आया कि मेरे से गलती हो गई। सो दे हैव दिस विंडो ऑफ 7 days, ये 7 days का विंडो आपके पास में उन्होंने दे रखा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, जो कि 22 फरवरी 22 फरवरी से स्टार्ट होगा और 28 फरवरी तक ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है, ये डेट। इस बीच में आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ओटीआर में मॉडिफिकेशन का आपको अलाउ करेगा, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, ऑल ऑफ यू, getting my point now let's move towards the, with respect to another question that I have seen with respect to the जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो पहले उससे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं, टोटल वैकेंसीज है कितनी। सो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, ठीक है, जो नोटिफिकेशन हमारे पास में आई है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 28 मई, ये 28 को आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 2023, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके 21 सर्विसेज के लिए होगा, टोटल 21 सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, आईआरएमएस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। कुछ ग्रुप बी के भी सर्विसेज हैं, जैसे आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, डायरेक्ट्स का है, ठीक है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप बी है, पुलिस सर्विस वहां के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, वहां के ग्रुप यूटीज वाले हैं, उनके लिए है। पुडुचेरी का जो सिविल सर्विसेज है उनके लिए है, पुडुचेरी का जो पुलिस सर्विसेज है उनके लिए है, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये 21 सर्विसेज के लिए आपको टोटल ये मिलेगा, एग्जाम देना है। उसका टोटल जो सीट्स है आपके लिए, ठीक है, टोटल सीट्स आर 1105 सीट्स, 1150 5 सीट है, सॉरी, 1105 सीट्स आर देयर इन टोटालिटी, ठीक है, इन टोटल वी हैव 1105 सीट्स। बहुत अच्छा वैकेंसीज निकली है इस साल, दिस इज व्हाट आई विल से विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, विद रिस्पेक्ट टू दिस नोटिफिकेशन आई कैन से बहुत ही बेहतरीन जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। ऑल्दो आईएएस कितना है, आईपीएस कितना है, आईएफएस कितना है, इसका कैटेगराइजेशन नहीं, ठीक है। और जनरली जो नंबर ऑफ सीट्स जो इन्होंने वैकेंसीज के लिए ओपन किया है, नंबर ऑफ सीट्स जनरली हर साल बढ़ के आता है, 10, 5, 15, 20 सीट हमेशा बढ़ के ही रहता है। अब इस 1105 सीट में 37 सीट जो है रिजर्व्ड है, ठीक है, किसके लिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। अब इसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि 37 सीट्स कैसे रिजर्व्ड है इनके अंदर, ठीक है, जैसे कि 7 सीट ब्लाइंड पीपल के लिए रिजर्व्ड है, ड्वार्फ और जो हार्ड हियरिंग है, हियरिंग इंपेयरमेंट है उनके लिए 15 वैकेंसीज, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, जो लेप्रोसी से हो गया, ड्वार्फिज्म से हो गया, प्लासी से हो गया, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो है। 10 वैकेंसीज मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए है। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है, जो इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी इंक्लूड होगा। और अलॉन्ग विद दैट जो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन है, अपार्ट फ्रॉम दिस 37 सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर दिस पर्टिकुलर जो पीएचडी कैटेगरी से पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज से हैं, उनके लिए भी रिजर्व्ड है, उनके लिए अलग से रिजर्व्ड है। वो जो 49.5% है और 10% है, उसके बाद भी ये भी रिजर्वेशन। नाउ रेस्ट आर ओपन फॉर ऑल, ओके, सो दिस यू शुड रिमेंबर, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट कि ये रिजर्वेशन का पार्ट, पीएचडी वाला जो रिजर्वेशन है वो उससे बाहर भी होता है और उसके अंदर भी होता है, दोनों चीजें होती है, एंड आई विल शो इट टू यू, ओके, डोंट वरी। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिस्कशन का, ओके। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एज का है। एंड आई विल कम टू दिस आल्सो, फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या चीजें रेस्ट्रिक्टेड है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
एज लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का एज लिमिट लेकर के, सर 21 साल पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सर 32 साल क्रॉस हो गया या नहीं हुआ। देखो, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख लोग जो है अपीयर करेंगे, ठीक है। हर किसी का डेट अलग अलग है। आपको तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए यूपीएससी ने क्या किया है कि एज को बहुत क्लियरली बता दिया है उसने, बहुत क्लियरली। अब एज में फैक्टर ये है कि उसे एक डेट चूज करना है कि इस डेट से पीछे और इस डेट के आगे के बच्चों को हम नहीं लेंगे। मतलब जो भी अपीयर हो रहा है वो इस डेट के और इस जो है ईयर के ब्रैकेट में ही होना चाहिए। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है हर किसी के लिए पुश समझना, ठीक है। 21 ईयर्स एज, इसमें टेक्निकलिटी ये है कैंडिडेट मस्ट अटेन 21 ईयर्स ऑफ एज। जैसे कि आप इसको पढ़ पा रहे हैं, अगर से देख पा रहे हैं और अब ध्यान दे रहे हैं, यू सी ओवर हियर कैंडिडेट मस्ट अटेंड the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years, ठीक है, 32 years on the 1st August of 2023, ठीक है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज में रहते हैं, सर मेरा 21 साल पूरा हो गया है या 21 साल मैं शुरुआत किया हूं। ये सब सोचने से अच्छा है, ठीक है। अब इसीलिए कहता हूं कि हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ो। इसके लिए इकरा हमेशा एम्फसाइज करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़िए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, सिंपल उसने कह दिया यूपीएससी ने कि देखो, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, दैट इज नॉट अर्लियर मींस नॉट बिफोर 2 अगस्त 1991। 2 अगस्त 1991 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस दिन भी चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा, ठीक है। एंड नॉट लेटर मतलब नॉट आफ्टर 1 अगस्त 2002। 1 अगस्त के 2002 के बाद भी पैदा नहीं होना चाहिए, दैट इज आफ्टर, दैट इज इट्स नॉट इंक्लूडिंग 1 अगस्त। 1 अगस्त इज एक्सक्लूडेड। मतलब 2 अगस्त के अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2002 है, 2 अगस्त 2002, तो सिंपल है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर है। 2 अगस्त या उसके बाद का कोई भी डेट हो, 2 अगस्त 2002 या उसके बाद का कोई भी डेट हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर है। मतलब आप एग्जाम अपीयर नहीं हो सकते हैं। या आप 2 अगस्त, ठीक है, दैट मीन्स द 2 अगस्त, द 1 अगस्त से पहले अगर आपने बॉर्न हुए हैं, 1 अगस्त से पहले 1991 के, तो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं है। तो आपको अपनी एज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप देखिए कि 2 अगस्त 1991 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के ब्रैकेट में अगर आप हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ उसके ब्रैकेट में आता है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर इन दोनों के इस ब्रैकेट के बाहर है आपका डेट, चाहे 2002 के आगे हो, ठीक है, 1 अगस्त के, या 2 अगस्त 1991 के 2 अगस्त 1991 के पीछे हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। मतलब इट्स ए क्लियर कट साइन। मतलब अपना एज बैठ करके जनरली बच्चे एक एक दिन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? आर यू एबल टू चेंज दैट? नो, ठीक है। तो यूपीएससी ने बहुत क्लियरली इसे मेंशन कर रखा है। तो प्लीज जस्ट रीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि आपका डेट इस ब्रैकेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका ब्रैकेट में नहीं आ रहा तो कितना भी हाथ पैर मार लोगे तो भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और अगर आ रहा है तो दो, आपकी मर्जी है। तो जस्ट सिटिंग and wasting your time in calculating the days and the times and the hours, it's of no use for you people, ठीक है। एक स्मार्ट एस्पिरेंट ये गलती करता ही नहीं है। वो जस्ट देखता है कि ब्रैकेट क्या बनाया है, अच्छा ये ब्रैकेट बनाया, आई एम एलिजिबल, आई अपीयर फॉर द एग्जाम। हो सकता है कि मैं 1 अगस्त को मेरा हुआ और मैं पहले ही दिन में जो है 2 अगस्त को जो है 2 अगस्त 1990 2 अगस्त 2000 1 अगस्त 2020 2002 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो यू आर एलिजिबल। हो सकता है कि उसी दिन आपका 21 ईयर्स हो रहा है, द फर्स्ट डे, तो आप एलिजिबल हैं। और मान लो कि 2 अगस्त को नॉट बिफोर देन 2 अगस्त, तो 2 अगस्त को अगर आप 1991 आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, और वही आपका लास्ट डेट है 32 का, तो आप एलिजिबल हैं।
इट इज सो सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं है उसके अंदर आपको। हाँ, ये हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। ये जो एज क्राइटेरिया है अपर लिमिट वाला जनरल कैटेगरी के लिए, अपर लिमिट, अपर एज लिमिट जो है वो बेसिकली कुछ लोगों के लिए रिलैक्स्ड है। जैसे कि एससी, अगर आप एससी और एसटी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब ये 1991 जो है ना, बेसिकली ये डेट चेंज होगा। ये डेट 5 साल के लिए पीछे जाएंगे तो 1986 हो जाएगा। ठीक है, ये एससी और एसटी के लिए बनेगा, तो उनके लिए 2 अगस्त 1986 हो जाएगा। और अगर आप बेसिकली ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो इनके लिए 3 साल का रिजर्व, 3 साल का एक्सटेंशन है। तो ओबीसी के लिए बनेगा ये बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा आप कह सकते हैं 1988 बन जाएगा ये, 2 अगस्त 1988। बस इतना ही चेंज होगा, 2002 चेंज नहीं होगा, उस साइड चेंज नहीं होता है, बल्कि आपका जो पीछे का एज है, अपर एज लिमिट है, वो चेंज होता है। बेसिकली 2000 इज योर लोअर एज लिमिट, lowest age limit, and 1991 is your highest or highest age limit हम कह सकते हैं उस केस में। ठीक है, यू गेटिंग माई? तो मेरे ख्याल से इसको लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद भी कुछ और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि 3 साल का रिलैक्सेशन आपको और भी मिलता है इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल है और डिसेबल ऑपरेशन, डिसेबल्ड इन द ऑपरेशन में आपको डिसेबिलिटी हो गई है तो वो सर्टिफिकेट वगैरह जनरल, लेकिन ऐसे ऐसे इस कैटेगरी से बहुत रेयर लोग होते हैं। या तो फिर आपके पास में 5 साल का और है, 5 years in case of ex-serviceman, including commissioned officer and emergency commissioned officer, short service commissioned officer who had rendered at least 5 year का जो उसने मिलिट्री सर्विस दिया हो, और उसका 5 साल का जो मिलिट्री सर्विस का डेट है वो 1 अगस्त 2023 को मिल जाना चाहिए। वहां तक के 1 अगस्त 2023 तक के आपका 5 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए मिलिट्री सर्विस में, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके प्लीज। और जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ओबीसी को लेकर के आता है या जनरल कैटेगरी और जनरली लोअर लिमिट को लेकर के आता है। अपर एज लिमिट वाले तो लोग जानते ही हैं कि कब वो एलिजिबल हैं और कब वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होता है उनके लिए दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वालों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उन लोगों को कि उनको क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, बाद में और भी कंडीशंस है जहां पे आपको मिलता है रिलैक्सेशन। ठीक है, जैसे डी में ही कई सारे क्राइटेरियास इन्वॉल्व है, फिर 5 साल आपको यहाँ भी मिलता है इन केस यू आर ऑल्सो, इन केस यू हैव 5 year का रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस ECS और SCS हैव कंप्लीटेड एन इनिशियल पीरियड ऑफ असाइनमेंट ऑफ 5 years। 5 साल का असाइनमेंट आपके पास में है, लेकिन आपने जो है 1 अगस्त 2023 को आपने मिनिमम कुछ कंप्लीट कर लिया, इनिशियल पीरियड कंप्लीट कर लिया है, तो आपको एक्सटेंशन मिला। दैट इज अ वेरी टेक्निकल एरिया, बहुत टेक्निकल एरिया है, वो आपको जो है वहां विजिट करना पड़ेगा, वहां पे डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा यूपीएससी भवन में जाकर के। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस। ठीक है, so this was about the eligibility criteria that is very important for all the students with respect to the age limit, एज क्राइटेरिया का जो लिमिट है उसके लिए। ठीक है, अब इसमें एक और है कि अगर आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी की कैटेगरी से, तो आपको 10 ईयर मिलता है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो आपको कितना मिलता है, 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब 1991 विल गो बैक टू 1981, वो 1981 पे पहुंच जाएगा। तो अपर एज लिमिट पीछे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट ऑल ऑफ यू। ठीक, ये बेसिकली हमें बताना है। नाउ अब आते हैं हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, मैं इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट आता हूं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन, जैसे कि यूपीएससी लिखता है ग्रेजुएशन, और ये बेसिकली सभी को पता है कि ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी
जो इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ सेंट्रल और द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। ठीक है, सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेचर पे जो भी ये इनकॉर्पोरेटेड है उस पे हमको देखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जनरली जो भी हम डिग्री ऑप्ट करते हैं, चाहे वो रेगुलर हो ग्रेजुएशन, चाहे वो करस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर वो बट दैट यूनिवर्सिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप अलाउड हैं उसके लिए। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। और हालांकि जो ये इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन का, ठीक है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भराया जाएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, और ये बात याद भी रखना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, और उसके साथ साथ में मैं रिजर्वेशन का भी पार्ट बता, जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो भी साथ में बता देता हूँ। देखो, जनरल कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो बेसिकली कितना है, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज 6। जनरल कैटेगरी हैव द 6 अटेम्प्ट। पहले 4 था, फिर इसको 6 कर दिया गया 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ, तो एज लिमिट को भी एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 6 अटेम्प्ट, ऑल आर एलिजिबल फॉर द 6 अटेम्प्ट। ठीक है, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरीज दैट वी हैव, एससी और एसटी हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि मरते दम तक दो। ठीक है, जो एज क्राइटेरिया आपके ऊपर है, ठीक है, जो 21 से लेकर के आपको जो 32 के बाद जो 5 साल रिलैक्सेशन मिला है, टिल द एज ऑफ 37 यू कैन गिव, दैट मीन्स यू हैव 17 अटेम्प्ट टोटल इन टोटालिटी एससी और एसटी के लिए। अनलिमिटेड का मतलब ये है, फ्रॉम द एज ऑफ 21 until the age of 37 you can give your attempt, and you can give every year. Number of attempt is not counted in the case of SC and ST. Then we have OBC. OBC के लिए 9 अटेम्प्ट है। ठीक है, विद द एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years, दैट इज 35 years का जो एज रिलैक्सेशन है उसको आपको कंसिडरेशन में रखना है। ठीक है, और 21 से लेकर के 35 years के एज के बीच में आपको 9 अटेम्प्ट देने हैं अपने। ठीक है, पीएच कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो लोग हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनलिमिटेड फॉर एससी एंड एसटी। और जो उनका तो 10 साल का जो एज लिमिट है, दैट इज फ्रॉम 21 टिल यू कैन से 42 तक ये अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस पार्ट ऑल ऑफ यू। ओके, गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिजर्वेशन को लेकर के, कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है रिजर्वेशन को, कि रिजर्वेशन में हमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं रिजर्वेशन के, वो डॉक्यूमेंट बेसिकली कैसे सबमिट करने हैं। ठीक है, तो एससी और एसटी का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रिजर्वेशन का, वो तो एक टाइम बनता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर द रिन्यूएबल एज सच। एससी और एसटी को रिन्यूएबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को पड़ती है, उनका हर साल इनफैक्ट रिन्यू होता है। ठीक है, तो वो चीज हमें याद रखनी है। ओके, तो मैं आपको इधर ही बता देता, इट्स अ ब्लैंक स्पेस ओवर हियर, तो आई विल टेल यू इन दिस पार्ट ओनली। और लेट मी चेक दिस आउट कि रिजर्वेशन का कहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी जो उन्होंने दिया है टू अवेल द रिजर्वेशन, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो कैंडिडेट हु विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस द पर्टिकुलर कास्ट टू विच द कैंडिडेट बिलोंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व कम्युनिटी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर अब मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिजर्व हूं लेकिन सेंटर में नहीं हूं, तो आप नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप रिजर्वेशन की लिस्ट में नहीं आते हो, उस कैटेगरी में नहीं हो, आपकी कम्युनिटी को रिजर्व कैटेगरी नहीं मानता है सेंटर। हो सकता है कि स्टेट का मानेगा लेकिन सेंटर नहीं मान रहा है, तो आप नहीं है। ठीक है, तो ये रीड दिस वेरी केयरफुली। ओके, ये आप इसे ध्यान से पढ़ो। सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट कम्युनिटीज
ओनली उन्होंने वर्ड यूज किया है, रिजर्व कम्युनिटी रिजर्वेशन, यू रीड दिस, कम्युनिटी रिजर्वेशन ओनली इन केस अ पर्टिकुलर कास्ट, ठीक है, टू विच द कैंडिडेट बिलोंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कम्युनिटी यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, अगर आपको रिकॉग्नाइज करता है कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आपका कास्ट, तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीएससी 2023, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, उनके पास में ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर, इसको बेसिकली शॉर्ट में लिखते हैं एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेस्ड ऑन द इनकम। इनकम का ईयर भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है, 2019-20, 2021 एंड 21-22, इशूड आफ्टर, कभी इशू हुआ है ये 1/4/2022, दैट इज 1 मार्च 2022 के बाद वो हुआ होगा, जो कंप्लीशन ईयर है 2021-2022 का फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद ही इशू होना चाहिए। और कब तक के हो सकता है? नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज 21 February, यू कैन सी हियर। तो आपका जो, अगर मान लो कि आपने पहले से बना रखा है, देन इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। इफ यू हैव नॉट मेड, so please apply for that as soon as possible, क्योंकि यूपीएससी के बाद में अगर आपने ये डाल दिया कि ओबीसी मैंने डाला है, और आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है या जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ठीक है, वो 22 फरवरी को इशू हो गया, तो भी आप ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। फॉर्म भर दिया ओबीसी के उसमें, लेकिन एलिजिबल नहीं हो। आपने जनरली, प्रॉब्लम कहां पे है ना, बच्चों को लगता है कि शायद मुझे जर्नल में शिफ्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको शिफ्ट नहीं किया जाता, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बाद में होगा। तो बेसिकली आप लिख दीजिए, लेकिन आप डॉक्यूमेंट लेकर के लिखिए कि आपका डॉक्यूमेंट है या नहीं है। सेम केस ईडब्ल्यूएस के साथ भी है, सेम केस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओबीसी में 3 साल का मांग रहे हैं वो लोग, 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस के हिसाब से आपको एनसीएल में आप है या नहीं है, 2019-20, 2021 एंड 21-22। ठीक है, और वो इशू होना चाहिए 1 मार्च 2022 के बाद में, उसके पहले का नहीं चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, आपका जो ये है ईडब्ल्यूएस, देखो ईडब्ल्यूएस में क्या लिखते हैं, कैंडिडेट हु इज एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ओनली इन केस द कैंडिडेट मीट द क्राइटेरिया। अब इसका क्राइटेरिया बड़ा लंबा है, issued by the central government as in the possession of the requisite income और asset certificate आपको मिलना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर, असेट का भी सर्टिफिकेट और इनकम का भी सर्टिफिकेट, दोनों साथ में एक्चुअली बनता है। ठीक है, तो इनकम और असेट का सर्टिफिकेट दिखा करके आपको 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो काउंट होगा, 22-23 नहीं होगा। जो 22-23 अभी ऑन गोइंग है, फरवरी है, 22-23 ऑन गोइंग है, ये वाला काउंट नहीं होगा, 21-22 का चाहिए होगा। तो 21-22 इज कंपलसरी ईडब्ल्यूएस के लिए, और वो भी इशू होना चाहिए आपका वेरी लेटेस्ट, दैट इज 1 मार्च 2022 में। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन 1 मार्च इसलिए है क्योंकि 30th मार्च, 31st, बेसिकली 31st मार्च, सॉरी 1 अप्रैल से नहीं होना चाहिए, जन फेब अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल से नहीं होना चाहिए, 31 मार्च तक के आपको अलाउड है, वहां पे फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है। तो यहाँ पे जो 4 है बेसिकली अप्रैल है, आई मिस प्रोनाउंस इट, सो इट इज अप्रैल। 1 अप्रैल से बाद ही आपका इशू होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल इंक्लूडेड है, या 1 अप्रैल आप छोड़ के भी बाद में आपको इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट। अगर आप कहेंगे कि सर 28 फरवरी का है मेरे पास में 2022 का, तो इट इज इनवैलिड, वो आप क्राइटेरिया में नहीं हो। ठीक है, क्राइटेरिया से बाहर हो आप। तो जिन लोगों के पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, वो प्लीज अपना सर्टिफिकेट बनवा लें।
क्योंकि यूपीएससी उसे कंसिडर करेगा ही नहीं बाद में, क्योंकि वो बार बार इस बात को एम्फोसाइज कर रहा है। जैसे कि जब पहली बार ईडब्ल्यूएस का आया था तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अलाउ किया था, ठीक है, विद इन 6 मंथ 7 मंथ के लिए उन्होंने अलाउ किया था कि आप 3 मंथ के अंदर आप उसको सबमिट कर दें। इस बार उन्होंने ये नहीं किया है, अभी कुछ सालों से नहीं कर रहे हैं। तो क्लोजिंग डेट जो है वो एप्लीकेशन के डेट के बराबर है। तो स्टार्ट रशिंग टू द नियरेस्ट जो आपका गवर्नमेंट वो है जहाँ पे ये सर्टिफिकेट इशू होते हैं, एसडीएम के ऑफिस भी जनरली होता है, ठीक है, तो वहां पे आप जाकर के मिलना चालू करिए, ठीक है। नहीं, जिसने नहीं बनाया है जल्दी से जल्दी करिए। क्यों के लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि किसी भी कंडीशन में आपको, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट यूपीएससी नहीं करेगा। खाली एक जगह पे उसने नॉर्मल तो नहीं करेगा वो, ठीक है। और आपने जो कैटेगरी ऑप्ट किया है अपने फिलिंग द फॉर्म, जो कैटेगरी आपने ऑप्ट किया है उसी कैटेगरी को कंसीडर करेगा और थ्रू आउट द एग्जाम आपको उसी कैटेगरी के अंदर रखेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू उसी कैटेगरी में, आपको कैटेगरी चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। खाली एक जगह पे आपको अलाउ करेगा, जहां पे जनरली होता क्या है, उसने इस बात को मेंशन भी किया है यूपीएससी ने, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करता हूं कि दिखा दूं वो भी आप देख लें, ठीक है। खाली एक ही जगह पे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से वो डेविएट होकर के आपको अलाउ करेगा, और वो बेसिकली ओके, दे हैव नॉट मेंशन, हाँ, चेंज इन द कैटेगरी, सो दे आर, गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, ठीक है। You see, in case you see this line, in case where such candidate do not qualify in the general stand, their candidature shall be cancelled. ठीक है, no candidate belonging to any subcategory of person with disability shall be allowed to change the subcategories also, in this case also, and in the other case also. You see in here, you read this. Sorry. You read this. If the category indicated by the candidate in application of civil services preliminary examination is unreserved category, but the candidate subsequently writes to the commission to change the category to the reserved one, such request shall not be entertained. उन्होंने इस बात को एकदम क्लियरली स्पेसिफाई किया कि एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फर्दर, once the candidate has chosen the reserved category, no request, just read here, no request shall be entertained for the change of other reserved category. अगर आपने एक रिजर्व कैटेगरी ले लिया, आप चाहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी चेंज हो जाए, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। जनरल को यहां भी नहीं आने दिया जाएगा, आप एक कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाली एक ही जगह पे उन्होंने, वो एक्चुअली थोड़ा सा कंसर्न्ड है, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, that is with respect to, you see this, while the above principle follows in journal, there may be, just read the second para, ठीक है। मैं आपको इसके लिए पढ़ के सुना रहा हूं कि आप उस चीज को याद रखें, ठीक है। while the above principle is followed in journal, there may be a few cases where there was a gap of not more than 3 months between the issuance of the government notification and listing a particular community in the list of reserved communities and the date of submission of the application by the candidate. ठीक है, in such a case the request of change of the category from unreserved to reserved may be considered by the commission on merits. सिंपल मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इशू करने में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लाने में 3 महीना उनको जनरली लगा, ठीक है। 3 महीने के अंदर अगर उन्होंने ला दिया, आपके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से लेकर के 3 महीना वो काउंट करेंगे। 3 महीने तक अगर आप 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया और आप रिजर्व कैटेगरी में आ गए, ठीक है, तो कमीशन कंसीडर करेगा यूपीएससी उसके लिए, वो भी डिपेंड करेगा मेरिट पे। मेरिट का मतलब ये है कि जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के क्लेम करने के लिए, वो क्राइटेरिया में अगर आप बैठे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो भी अनरिजर्व से रिजर्व में, रिजर्व से रिजर्व में तो कुछ नहीं हो सकता है, तो प्लीज रिमेंबर दैट। पीएचडी जो पीवीडी है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है,
PWBD, उसमें भी बेसिकली चेंजेस नहीं है. सो दोज हु आर वांट टू ऑप्ट द रिजर्वेशन, ये इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर उसको एक्सरसाइज करना है, तो प्लीज बी केयरफुल. ठीक है. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस इट हियर ओनली. ठीक है. एक क्वेश्चन है बच्चों का विद रिस्पेक्ट टू the choice of examination in here. Okay. And I want to discuss it here only. कि सर बेसिकली हमारा जो ये है फॉरेस्ट का एग्जाम और दोनों एग्जाम दोनों सिंपल है, दोनों सेम है. ठीक है. फॉरेस्ट का भी एग्जाम और हमारा एग्जाम में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो बेसिकली दोनों का सेम है. यस, इट इज सेम. आपके फॉरेस्ट का भी एग्जाम और इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो दोनों सेम है. ओके. पर एक डिफरेंस है दोनों के अंदर. वेयर इट इज, आई माइट हैव मिस्ड दैट पार्ट. देखो, दोनों का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेम है. ठीक है. फॉरेस्ट का और आपका दोनों का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है? सेम. ओके. लेकिन एक ही चेंजेस है कि अगर आप फॉरेस्ट के एग्जाम, फॉरेस्ट का अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों के लिए एक ही प्रीलिम्स में दे दूं, तो आप उसमें कंबाइंड सर्विसेज आती है, आप उसको ऑप्ट कर लेना. दो जब आप ओपन करते हैं ना पेज एप्लीकेशन के लिए, तो वो पेज ओपन होता है जिसमें वो पूछता है कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए देना है या सिविल प्लस फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए देना है. Those who do not want to give the forest services, they should not opt for the forest services. फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए ऑप्ट बिल्कुल नहीं करना है. फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कंडीशन और क्राइटेरिया जो सेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के वेबसाइट पे उन्होंने दे रखा है. ठीक है. जनरली जो मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे देता हूँ. इफ यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड इन योर ग्रेजुएशन, जैसे कि आपका बीएससी नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपका बीटेक नहीं है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से अगर आप नहीं है, ठीक है, चाहे आपका हो सकता है कि डिग्री जो है वो बीएससी इन एग्रीकल्चर हो, तो बीएससी की डिग्री अगर आपके पास में या उससे हायर डिग्री से बीटेक की डिग्री अगर आपके पास में है, जो साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हैं, ग्रेजुएशन है आपका, 11th-12th नहीं, ओके, इंटरमीडिएट नहीं बल्कि ग्रेजुएशन, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड से है तो यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आप अपीयर हो सकते हैं. लेकिन अगर आप मान लो कि इस साल आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज देना है, फॉरेस्ट सर्विसेज नहीं देना है, you want to save the attempt of the forest services, you can save the attempt of the forest services, just opt for the civil services. अगर आपको दोनों देना है और आप चाहते हैं कि दोनों में से किसी एक में तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो आप दोनों को ऑप्ट करके आगे बढ़ जाइए. दोनों का अटेम्प्ट सेम है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आर सेम, और दोनों साथ में दे दोगे, साथ में दोनों के लिए प्रीलिम्स लोगे तो दोनों के लिए एक साथ काउंट हो जाएगा आपका अटेम्प्ट. दोनों का अटेम्प्ट एक साथ काउंट हो जाएगा आपका. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि वेस्ट करना है कि नहीं करना है. अगर आप इस साल सिविल सर्विसेज का देना नहीं चाहते हो, खाली फॉरेस्ट देना चाहते हो, तो खाली फॉरेस्ट का भर दो. इस साल आप सिर्फ सिविल, वो भी फॉरेस्ट का भी, ओनली फॉर फॉरेस्ट के लिए भी वहां पे इंफॉर्मेशन होगा आपके, 3 लिंक होगी वहां पे, ओनली सिविल सर्विसेज, ओनली फॉरेस्ट सर्विसेज और कंबाइंड, 3 लिंक मिलेगी. आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको उसी फॉर्म पे ले जाएगा. ठीक है. यू गॉटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? ओके. तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आर सेम, यू ऑप्ट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर. ठीक है. अपने डिजायर के हिसाब से, अपने चॉइसेस के हिसाब से आप उसको देना चाहते. जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने 6 के 6 बार दे दिया कंबाइन करके, उसे आइडिया नहीं था बेचारे को. ऑल 6 ऑफ देम एग्जॉस्टेड, देन ही सॉर्ट कि मैं वो दे देता फॉरेस्ट सर्विसेज में, बाद में मालूम पड़ा कि वो नहीं हो सकता है. ऑल द 6 अटेम्प्ट आर एग्जॉस्टेड नाउ. यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? ठीक है. तो ये बात याद रखिएगा आप लोग. 150 सीट्स हैं इस बार फॉरेस्ट सर्विसेज में. ठीक है. टोटल 150 सीट्स आर देयर फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज. दे हैव मेंशन इन द नोटिफिकेशन एज वेल. Sorry. Really sorry for this. You check once. 150 services so far I remember. There are 150 services for the forest services. 150 seats are there. Vacancies are there for the forest services. There they have mentioned this. राजीव, 1 मिनट, आप लोग का क्वेश्चन लिया जाएगा. आप 2 मिनट और दीजिए. In 2 minutes we'll wind up this part. ठीक है. एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा कि आपको यहीं पे
इसी स्टेज में प्रिलिमिनरी के जब फॉर्म आप सबमिट करेंगे ना, उसी स्टेज में आपसे मेंस का सेंटर भी पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस का सेंटर, जैसे कि ऐसे प्रिलिमिनरी सेंटर्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर है, टोटल है सेंटर ऑलमोस्ट 79 सेंटर्स अवेलेबल है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर दे सकते हैं। और मेंस के लिए उन्होंने 24 सेंटर रखा है अप्रोक्सीमेटली। सारे के सारे जो है जितने भी सेंटर्स हैं मोस्टली कैपिटल्स हैं अपने अपने स्टेट्स के, ठीक है, ज्यादातर कैपिटल्स। दिल्ली चंडीगढ़ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं। ये यहीं पे ये बेसिकली इसी फॉर्म में आपसे मेन सेंटर भी पूछेंगे, इसी फॉर्म में आपसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पूछेंगे। ये दोनों ही चेंज करने का परमिशन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा बाद में। तो बी केयरफुल व्हाइल यू सिलेक्टिंग द मेन सेंटर। जो अपना मेन सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आप बहुत केयरफुल रहिए, ठीक है। ये भी अलाउड है कि आपका प्रीलिम्स का सेंटर कुछ और हो, आपका मेंस का सेंटर कुछ और हो जाए, ठीक है। ये भी अलाउड है। आप हो सकता है दिल्ली रखें अपने प्रीलिम्स का सेंटर, आप लेकिन मेंस रख दे जाके शिलोंग, या तो आप शिलोंग प्रीलिम्स रखें और दिल्ली सेंटर रखें आप मेंस के लिए। डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, उसमें कोई चेंजेस। खाली ये है कि कुछ सेंटर्स आर वेरी हॉट, बहुत हॉट सेंटर्स होते हैं, जल्दी फिलअप हो जाते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस का उनका क्राइटेरिया है, तो वो प्रीलिम्स में होता है जनरली, ठीक है। कि दिल्ली बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है, बहुत जल्दी जो है एक स्पेसिफिक अलॉटेड सीट्स है, वो पता नहीं कितनी है लेकिन वो जल्दी फिलअप हो जाता है। तो इफ यू आर गोइंग फॉर द दिल्ली देन गो इट सून, फिल अप योर फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। रही बात, एक क्राइटेरिया ये था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को, you're in this criteria, person with disability in the from the 21 services जो आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी या किसी भी डिसेबिलिटी है, उसमें से 17 सर्विसेज में आप अलाउड हैं। बेसिकली आर्म्ड फोर्स वाले जितने भी सर्विसेज है ना, लॉ एंड ऑर्डर वाले, वहां पे अलाउड नहीं है। जैसे आईपीएस में आप अलाउड नहीं है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है, मेडिकल कंडीशन की वजह से। आपको जो है दिल्ली पुलिस सर्विसेज में या अंडमान पुलिस सर्विसेज वाले हिस्से में भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आई विल शो इट टू यू, ठीक है। तो वो पर्सन विद दिस, प्लीज रीड दिस क्राइटेरिया कि कौन कहाँ पे कितना अलाउड है। आईएएस में लगभग सभी अलाउड है, ऐसा आईएएस में कोई रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे सारे लोग अलाउड है। तो यू कैन सी दिस। आप आईपीएस के अलाउड नहीं रहेंगे, ठीक है, मैं आपको अभी बता दूं, यू नॉट अलाउड फॉर आईपीएस, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट इज यू आर नॉट अलाउड फॉर इंडियन रेलवे, यू आर नॉट अलाउड फॉर दिस ऑल्सो। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए भी अलाउड नहीं रहेंगे। बेसिकली आप अलाउड नहीं रहेंगे, ये सिविल सर्विसेज है। आप अंडमान के पुलिस सर्विसेज के लिए भी अलाउड नहीं है, ठीक है। दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज के लिए अलाउड नहीं है। पौंडीचेरी के पुलिस सर्विसेज के लिए आप अलाउड नहीं रहेंगे, ठीक है। 17 are there where you are allowed and 4 are there where you are not allowed, okay. आर्म्ड फोर्स जो हेडक्वार्टर है सिविल सर्विसेज का, हियर यू आर अलाउड, सेक्शन बी का है। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स मैंने बताया, आप यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 4 हो गया हमारा, ठीक है। इंडियन रेलवे बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो हम जनरली इसे जानते हैं आरपीएफ के नाम से हम जानते हैं, सॉरी आरपीएफ के नाम से, ठीक है। यहाँ पे भी आप अलाउड नहीं है। तो आर्म्ड फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर वाले पार्ट में आप अलाउड नहीं है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। बाकी आप 17 सर्विसेज में विद रिस्पेक्ट टू ईच सर्विसेज उन्होंने कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया है, प्लीज रीड दैट क्राइटेरिया स्पेसिफिकली एंड यू कैन गो विद दैट, ओके। बाकी ये 4 जगह पे तो आप मेडिकल कंडीशंस पे आपको अलाउड नहीं है, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ डिमांड ऑफ द एग्जाम और डिमांड ऑफ द जॉब, ठीक है। तो इसलिए आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, ओके। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से विद रिस्पेक्ट टू the entire notification, and with this you can go ahead and you can fill the form accordingly, okay. Now I'll take the question one by one, okay. UD sir, I would like to have your assist this one. जी सर, मैं थोड़ा आपकी हेल्प चाहिए मुझे, okay. राजीव has raised his hand, so राजीव बताओ क्या है, you can ask your question, राजीव।
राजीव माइक के आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, अनम्यूट हो जाएगा। 1 मिनट राजीव, 1 मिनट रुकना राजीव। Okay, Rajiv, you can speak. I can hear you. Okay, there is one more person who has raised the hand. Okay, राजीव, अगर आप नहीं बात करें तो शशि सिंह राजपूत, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने कल फॉर्म भरा था, उसमें एक मिस्टेक हो गई कि EWS नंबर जो है उसमें गलत डल गया। हम्म तो सर उसको कैसे करेक्शन करें या फ्रेश न्यू फॉर्म भरे उसमें? न्यू फॉर्म भर दो, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सर अभी सर डेट इसी में भरना होगा कि लास्ट सप्ताह में? नहीं नहीं, आप भर सकते हैं, अभी भी भर सकते हैं, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे वाले पे। ठीक है, अगर मतलब आप जो लेटेस्ट फॉर्म डलेगा सर लेटेस्ट उसी फॉर्म का भरते हैं वैल्यू? हम लोग, वही कंसीडर करते हैं वो लोग, जो आप लेटेस्ट सेम नाम पे सेम उस पे अगर लेटेस्ट आया तो लेटेस्ट वाला कंसीडर कर लेते हैं वो। ठीक है ओके। ओके सर, ना, थैंक यू। नहीं तो एक और फॉर्म भर दो। ठीक है, और मान लो कि आपको चांस मिल जाए करेक्शन करने का वहां पे, जो करेक्शन पीरियड है, तो वहां पे करेक्शन भी कर देना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, यू कैन डू दैट, ओके। बट बेटर होगा कि आप नया ही फॉर्म भर दीजिए उस ऑल टुगेदर। आपने पेमेंट भी कर दिया है? जी सर। हाँ, तो भर दीजिए, कोई बात नहीं, नया फॉर्म भर दीजिए। ओके सर, थैंक कमिंग टू द पेमेंट, वुमेन, SC ST OBC इन लोगों को जो है पेमेंट, फिजिकली हैंडीकैप पीपल को जो है पेमेंट क्राइटेरिया से बाहर रखा है, एग्जेम्प्टेड है। 100 रुपीज बाकी लोगों को चार्ज है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा आप लोग। अनूप कुमार, बताइए। सर मेरे को ना सर वैसे फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मेरी नी जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है सर। अभी एक्सीडेंट हुआ था सर मेरे को, तो आई कैन वॉक और मतलब कि रन ही नहीं कर सकता हूँ। तो सर मेरे को हाँ, तो सर मेरे को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए सर? फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस, सर्विस, हाँ सर। फॉरेन या फॉरेस्ट? फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट, आई फॉरेस्ट में आप भर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लीजिए सर, उनके। उसके अंदर सर लोग को डिसेबिलिटी उनके लिए 40% है। एसिड अटैक के लिए है सर लोग को डिसेबिलिटी, या हाँ, फिर सर उनको सर कुछ और जैसे सेम है। लेप्रोसी है या फिर एसिड अटैक है लेप्रोसी, या। हाँ, एक लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होगा उसके अंदर, जो हाँ सर, आर्म्स वगैरह ये सब होगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सर्टिफिकेट नहीं है सर मेरे पास सर, तो फिर एक्चुअली भी मेरे को। अलाउ करेंगे। नहीं, ठीक, नहीं नहीं, मेडिकली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैं आपके भर पास। सकता हूँ सर जनरल के, नो फिजिकल हैंडीकैप के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकली मैं मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सर फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर ट्रेन्स रहती हैं, तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए बाद में, इसी देखो ऐसा कुछ बाद है में क्या? अगर इतना एप्रीहेंशन हो तो फिर मत भरो, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज में, फॉरेन फॉरेस्ट सर्विसेज में। ठीक है, हाँ, लेकिन आप कंपिटेंट है फिजिकली या नहीं है, ठीक है, उसका जो बेसिकली जो क्लेरिफिकेशन है वो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है, जो आपको सर्टिफिकेट के थ्रू देगा। ओके राइट, ठीक है, थैंक यू। बाकी आप सर बिना सर्टिफिकेट के जाओगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप जा ओके, सकते ओके, थैंक यू। हैं। फिजिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड, वो तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है फिजिकल फिटनेस। ओके राजीव, योर क्वेश्चन, यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ, हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे कि मैं फिजिकल हैंडीकैप में आता, फिजिकल डिसेबल्ड में हूँ, हार्ड ऑफ हियरिंग में। तो मैंने सर्टिफिकेट बनाया था 2016 में ही, हाँ और वो होल लाइफ के लिए बना हुआ है। हमारे सदर हाँ, अस्पताल हमारे अलग जिले से, आपके मैं लिए अलग बिहार से से नहीं बिलोंग बनता है, करता हाँ हूँ सर। ठीक है, हाँ, परमानेंट तो होता सर है। वो होल लाइफ के लिए बना हुआ है, तो क्या मुझे फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा उसको? हाँ, नहीं नहीं, रिन्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, होल लाइफ के लिए बना है तो रिन्यू की क्या हाँ जरूरत सर, है। क्योंकि होल लाइफ का एक बॉक्स था, उसको सर ने टिक कर दिया था। तो वो होल लाइफ के लिए ही बनता है, मतलब अच्छा, कुछ ऐसा डिसेबिलिटी है, मान लो कि आपका हाथ नहीं है या तो मैं कंप्लीटली। हार्ड ऑफ हियरिंग से हूँ सर। हाँ, तो वो उसकी जरूरत है, जब होल लाइफ लिख लेफ्ट दिया ना लेफ्ट उन्होंने ईयर से। मेडिकली, मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने लिख दिया कि इट इज दिस नॉट गोइंग टू बी उसमें हीलिंग नहीं हो सकती है। जनरली जिसमें हीलिंग नहीं हो सकती वो लिख देते हैं कि ये नहीं हो सकता, और नॉट। सर मैं इकरा का स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये करा के बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सर। ये चल रही प्रिपरेशन वगैरह सब? सर बहुत अच्छी चल रही है, अभी हमारा एनसीईआरटी बैच है, अच्छे से ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और गुड, संजय सर का क्लास था अच्छा। और एक बहुत। चीज पूछना था सर मैंने, कि हाँ, जैसे कि एज लिमिटेशन आपने बजाया 21 से 42 तक। हम्म हाँ, तो उसी में मैं आ रहा हूँ। हम्म
10 साल का जो रिलैक्सेशन 10 मिला है साल का वो शायद रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, तो वो अपर एज यानी कि 32 प्लस 10 साल। 32+10। और सर एक चीज और पूछना था कि जैसे मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था अपने ब्लॉक से, तो वो बहुत पुराना हो गया, तो मैं 24 में अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ, तो क्या उसे फिर से बनवाना बनवाना पड़ेगा होगा? आपको। 24 में अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 23 के 1 अप्रैल से 1 अप्रैल के बाद आपको बनवाना पड़ेगा नया वाला। अच्छा, ठीक है, अप्रैल के बाद मैं बनवा अप्रैल लूंगा। के बाद, हाँ अप्रैल के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 2 और 3 खत्म होगा ना, तो 24 में वही डिमांड करेंगे वो लोग, तीसरा साल। ठीक है, अच्छा सर, एक चीज और कि जैसे मैं जब फॉर्म जब फिल करूंगा 24 में, तो मैं तो पीएच में भी आ रहा हूँ और ओबीसी में भी आ रहा दोनों हूँ, तो क्या दोनों मैं कंबाइन लगेगा। तो दोनों कंबाइन तब देना होगा? वो क्या होगा कि आपके ओबीसी में पीएच इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वो बेनिफिट रहेगा ना सर? हाँ बेनिफिट रहेगा। जनरली क्या होता है कि वो पीएच वाला अब उसमें अलग है, जैसे कि मैंने बताया 37 सीट्स आर रिजर्व्ड इन दैट आल्सो। तो वो दोनों अलग अलग क्राइटेरिया से कैसे क्या होता है कि अभी वो अंदर भी ले लेते हैं। जैसे कि आपने क्राइटेरिया सेट किया, ठीक है, आप जनरल में आते हैं लेकिन आप पीएच हैं, तो आपको पीएच के अंदर, जनरल के अंदर पीएच कैटेगरी से आपकी सीट्स निकालेगा। लेकिन अगर आपने ओबीसी लिख दिया तो ओबीसी के अंदर आपको पीएच डाल के देगा वो। ठीक है, वो टेक्निकल बहुत है। ठीक है, मतलब वो बहुत टेक्निकलिटी से जो है वो एम्बेडेड है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, तो ओबीसी के अंदर भी फिजिकल डाल देगा वो, कि ओबीसी में फिजिकल इतना जाएगा। ठीक है, एससी के अंदर फिजिकल इतना आएगा। ठीक है, बहुत टेक्निकल बनाया उन्होंने। ओके ओके, दिवाकर चौधरी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ को आईआरएमएस जो था पहले नोटिफिकेशन आया था कि उसका मेंस अलग से होगा, हम्म, तो उसके लिए अलग से फिल करना पड़ेगा या फिर वो अब सीएससी के नहीं अभी तो साथ ही हो चेंज, गया इस है? बार के नोटिफिकेशन में चेंज नहीं किया उन्होंने। ओके ठीक, सर। हाँ तो फिर वो इसी में रहेगा। वो करना चाह रहे हैं उसको अलग, तो अगर कर ओके देंगे तो फिर वो अलग बदलेगी, इस बार नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, ओके सर, वो नोटिफिकेशन आया था ना, वो सितंबर में आया नोटिफिकेशन, था। हाँ नोटिफिकेशन। एक चीज और है, पहले उससे पहले कि आप लोग सवाल पूछे, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू आवर इंस्टीट्यूट। यूडी सर, यूडी सर। जी सर। हाँ सर, बेसिकली बच्चों को 2 मिनट होल्ड करने दीजिए, क्योंकि मैं एकरा का श्योर बहुत सर, नो इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम, मुझे नो मुझे प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एकरा का शेयर करना है बच्चों के साथ में। सो डियर स्टूडेंट्स, ICRA is coming up with its crash course program. बेसिकली ये क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है ये 60 डेज, 55 to 60 डेज का क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, जो प्रीलिम्स 2023 के लिए स्पेसिफिकली हमने बनाया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्रैश कोर्स में, आप क्रैश कोर्स को ऐसे मत कंसीडर करिए, आप इसको ऐसे लेके चलिए क्रैश कोर्स को कि ये बेसिकली रिवीजन है आपका। ठीक है, रिवीजन आपके लिए है, रिवीजन के मॉडल में हमने बनाया। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें करंट अपडेशन की जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है, और कुछ बेसिक्स क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, जैसे कि पॉलिटी है। ठीक है, तो कुछ या पॉलिटी है, इकोनॉमी है जिसमें कॉन्सेप्ट है, या ज्योग्राफी है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो नहीं पा रही है हमारी। ठीक है, तो बेसिकली रिवीजन के मोड में हमने इसको बनाया है। और इसके अंदर जैसे कि कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पे हम कहते हैं कि करंट अफेयर्स का अपडेशन चाहिए, करंट का अपडेशन चाहिए हमें वहाँ पे। जैसे कि इकोनॉमी में कुछ नया, इन्फ्लेशन में क्या ऐड हुआ है, बजट में क्या नया आया है, कुछ नया टर्म्स इकोनॉमिक सर्वे ने यूज कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली पूरा का पूरा जीएस एक बार, बहुत बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम चाहते हैं कि एक बार आपसे रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ICRA लेकर के आता है आप सबके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्स
ठीक है, क्रैश कोर्स लेके आता है, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन बेसिकली 55 to 60 डेज है। ओके, ये पूरा सिलेबस आपके प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से क्लियर कवर करेगा, सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटी, ऑल विल बी कवर्ड हियर। इसमें आपको इसके साथ में टेस्ट भी मिलेगा, 6th फुल लेंथ टेस्ट। ओके, 6 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे एंड द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 27 फरवरी 2023 से हम बैच स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस है पूरा, ठीक है। स्टूडेंट का जो वीडियोस है वो अपने कन्वीनियंस पे वो देख सकते हैं। वीडियो की जो लिमिट है वो आपके जो एग्जाम डेट है 28 वहां तक के लिमिटेड है, वहां तक के आपका वीडियो अवेलेबल होगा। नंबर ऑफ टाइम यू हैव टू सी द वीडियोस दैट इज अवेलेबल देयर। आप सब्जेक्ट कवरेज देखिए, साइंस टेक, ये सब करंट है, बहुत करंट है। मान लो आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको चाहिए कि कोई जल्दी से मुझे जो रिसेंट अपडेट हुआ है पूरा का पूरा वो पढ़ा दे। एनवायरनमेंट में कुछ नया हुआ है, क्या नया ट्रीटी, कुछ नया पॉलिसी, कुछ नया प्रोग्राम्स लॉन्च हुआ है तो उसके लिए भी। इकोलॉजी, हिस्ट्री में तो जनरली हमें कुछ कल्चर का पार्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ मिडिवल में नहीं समझ में आ रहा है, एंशिएंट में कुछ चीज नहीं समझ में, तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इसे कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे ज्योग्राफी के अभी कॉन्सेप्ट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप कुछ कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, बार बार समझ नहीं आ रहा है, कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स हो रहे हैं आपसे, तो वो चीजें भी कवर होगी। सोशल इशू का कुछ नया पार्ट है जो डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी, आज के टाइम में जो पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है वो करंट से बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट टाइम उन्होंने लॉयर्स पे, कॉर्पोरेट लॉयर्स पे वैसा क्वेश्चन पूछा है। उससे पहले वाले साल में उन्होंने बहुत ही कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन जो बेसिकली पॉलिटी से थोड़ा सा बाहर निकल के पूछना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो वो पार्ट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। इंडियन इकोनॉमी में बजट में क्या नया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नया टर्म्स आए, इकोनॉमी में क्या अपडेट है, ठीक है, जीडीपी में क्या अपडेट है, इन्फ्लेशन में क्या अपडेट है, फॉरेन एक्सचेंज में क्या अपडेट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपडेट आपको जरूरी है। आप ढूंढ सकते हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी जगह पे आपको हर बार उतना मेहनत डालना पड़े। इसके लिए क्रैश कोर्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू पीपल, ओके। और करंट अफेयर्स का जो 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो यूपीएससी जो है पर्सपेक्टिव में है। मेंटरिंगशिप 1-to-1 मिलेगी आपको। देयर आर 2 मेंटर्स इन हियर, वन इज वेरी एक्सपीरियंस, मयंक सर इज देयर एज अ मेंटर, एंड सेकंड इज Irshad Khan, that is me. I will be mentoring you. I run one dedicated, basically एक डेडिकेटेड प्रोग्राम हम चलाते हैं जो मैंने स्टार्ट किया है, ग्रुप है जो इकरा के बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली। वहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हम जो है आपको पढ़ाते हैं, डिफरेंट लेवल पे आपकी तैयारी, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस्ड है वो एरिया। तो उस ग्रुप में भी आपको इंक्लूड किया जाएगा और वहां से भी आपको जो है प्रिपरेशन को 1-to-1 मेंटरिंग, कुछ इशू है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, कैसा है, कैसे डील करना है सब्जेक्ट को, साइंस टेक को कैसे डील करना है, वो सारी मेंटरिंग आपको प्रोवाइडेड है। करंट अफेयर्स पूरा आपको दिया जाएगा, 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ बेसिकली 2500 में आपको दी जाएगी टिल 26 जनवरी तक के हमारा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट था। 27 फरवरी है एक्चुअली में ये, ठीक है। 27 फेब तक के अगर आप रजिस्टर करते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो 2500 है। उसके बाद इसकी फीस 7500 हो जाएगी वंस द प्रोग्राम बिगिंस, ओके। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम और ये भी लिमिटेड सीडी है, हम ज्यादा लोगों को लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें मेंटरिंग भी देनी है, तो हम ज्यादा लोगों को लेकर के फिर वो सर्विसेज हम ना दे पाए और करंट अफेयर्स पे उतना 1-to-1 मेंटर पे फोकस ना कर पाए। तो बेसिकली हमने लिमिटेड लोगों के लिए इसको रखा है। द वन हु इज वेरी सीरियस, the one serious student will not try to avoid such kind of a very you can say very niche base जो प्रोग्राम बनाया गया है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स। और हमारे क्रैश कोर्स में हमेशा से काफी बच्चों का सिलेक्शन प्रीलिम्स में होता रहा है इससे, ठीक है। सो बहुत बेनिफिशियल रहा है ये प्रोग्राम, क्योंकि सब सीनियर और एक्सपीरियंस फैकल्टी ही यहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यू कैन गो विद दिस, चेक आउट द, यू कैन से आई कैन शो यू द लिंक ऑल्सो वेर you can go and subscribe this, okay. I'll show you the link. So here is the link. Okay. So from here you can see the new courses.
क्रैश कोर्स का लिंक हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स, यू सी हियर क्रैश कोर्स फॉर द प्रीलिम्स 2022. फ्रॉम हियर यू कैन सी द फ्री डेमो लेक्चर्स. आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, और पूरा डिटेल्स आपको इस पूरे ब्रैकेट में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नाउ जा करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। So please, all of you, those who want to join this program, get the benefit from this program. All can join and they can have an access to the program. It is one of the best program with a very limited, very negligible fees that we are providing. It's not all about fees, but it is all about the kind of quality the ICRA is committed to provide. You can see here in the crash course as well. Okay. So basically, हमारा मोटिव ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आप प्रिपेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एग्जाम की क्वालिटी को एनरिच करें, ठीक है। देखो, सीरियस कैंडिडेट 50,000 ही होते हैं, द कंपटीशन इज देयर ओनली, ओके। सो मान लो कि पॉलिटी में तुम्हें दिक्कत हो रही है या किसी सब्जेक्ट में तुम्हें थोड़ा वीकनेस आ रहा है, तो यू कैन गो एंड यू कैन read that particular lectures or watch that particular lecture as soon as possible. That can be a good help to you people with respect to this. ओके इसके साथ में हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, स्कॉलरशिप टेस्ट भी आ रहा है, ठीक है, 17 फरवरी को, जिसमें स्कॉलरशिप का वर्थ 10 लाख रुपीस स्कॉलरली वर्थ है हमारे पास में, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक के लोग हैं। तो यू कैन रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो. You register yourself. So we have a different venue in here. You can see the venue. We have a Kanpur venue for the offline also 17 फरवरी को, और पूना भी वेन्यू है हमारा. तो आप देख सकते हैं दोनों 10 बजे स्टार्ट होगा हमारा, और हम जो है 17 फेब को, फ्राइडे को हम आपसे टेस्ट लेंगे. टेक दिस स्कॉलरशिप एंड गेट अ चांस टू विन ऑफ 90% ऑफ द स्कॉलरशिप. जो फीस है वो बेसिकली वेव कर दी जाएगी. जैसे कि फर्स्ट 5 टॉपर को हम 100% फ्री प्रोवाइड करेंगे, जो प्री कम मेंस का जो प्रोग्राम है हमारा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ठीक है, कोई भी एक कोर्स में. सेकंड 5 टॉपर्स हैं, ठीक है, सेकंड सेट ऑफ 5 टॉपर 6 to 10th रैंक तक 75% हमने ऑफ किया है हमारे कोर्स की फीस में से, ठीक है. और जो थर्ड सेट ऑफ 5 स्टूडेंट है फ्रॉम द रैंक ऑफ 50 फ्रॉम द रैंक ऑफ 11 to 15, ठीक है, उसमें हम 50% का कंसेशन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट को, ठीक है. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज, यू कैन सी द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 15th of February. 15th of February है, ठीक है. वेन्यू मैंने आपको बताया है, कानपुर सेंटर और पूना जो हमारा सेंटर है, वो दोनों जगह पे वेन्यू है. यू कैन ऑल गो एंड यू कैन ऑल सब्सक्राइब, गेट द एक्सपीरियंस, द क्वालिटी ऑफ द ICRA, ठीक है. एंड we'll see you soon, and all the best for your scholarship test as well, and all the best for your prelims examination as well. Now UD sir, I'll take the question with respect to the students who have asked. कुछ चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है सर, ठीक है, वो भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है. सर, anybody want to ask any question? They can raise their hand, or else I'll directly start with with the chat box question. Sir, I fill the form of the UPSC, but some mistake has been done in application, not in the OTS. So when can I make a correction, or I'll have to fill the fresh form? Fill the fresh form, Shashi. ठीक है. Sir, Jia is asking, sir, in the father's and the mother's name, is there a need to write the surname or just the father name and the mother's name? Not required as such to write the father surname, because surname is already there over there. खाली फादर का नाम भी लिख दोगे तो इट्स फाइन. ओके सर, इन द ओबीसी सर्टिफिकेट वी हैव मेंशन द इनकम ऑफ 2019 to 23 फाइनेंशियली. यस, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. 2023 तक नहीं, 2022 के मार्च के एंड तक के आपको देना है, ठीक है. मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है इन डिटेल. सर, IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आल्सो रिक्रूटिंग थ्रू द UPSC. So shall we apply separately for it? हाँ, you can apply separately for it. That is your choice. ठीक है. सर, मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया अभी तक के, एग्जाम डेट दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक, क्या एलिजिबल है या नहीं? हाँ, उसमें रिजल्ट अवेटिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है. अपने जो ग्रेजुएशन का डिटेल आप देंगे, उसमें रिजल्ट अवेटिंग आप लिख दीजिएगा, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है. रिजल्ट अवेटिंग से आप बाद में उसे सबमिट कर सकते हैं, नॉट एन इशू. रिजल्ट अवेटिंग इज अलाउड. फॉरेस्ट सर्विस में भी अलाउ नहीं करेगा? नहीं. अनूप हैज, फॉरेस्ट सर्विस में क्या अलाउ नहीं करेगा? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. आई गेस अनूप ने क्वेश्चन ऑलरेडी अपना पूछ लिया है, तो मैं
एड्रेस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन। सर मेरा अभी ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं आया है, तो क्या अभी जरूरी है फॉर्म भरने के लिए? बट रिजल्ट आ चुका है। सर मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं आया, तो डिग्री नहीं आया तो क्या हुआ, रिजल्ट तो आ गया ना। अगर दोनों भी नहीं आता तब भी भर सकते थे आप, नॉट एन इशू। ठीक है, आप अपीयर हो चुके हैं, रिजल्ट अवेटिंग आप लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ओके। हेलो सर, मेरा राइट आइज का विजन 3/6 है और मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, क्या मैं पुलिस सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आपको वैसे भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, आप अप्लाई करेंगे मेडिकल कंडीशन में आपको वो सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप सर्टिफिकेट बनवा ही लीजिए अगर आपको लगता है कि आप आई साइड से बहुत ज्यादा वीक हैं। ठीक है, और क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि 6/6 है, 12/2 क्या क्राइटेरिया है, 3/6 आई डोंट नो द डिटेल्स, टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है। तो आप चाहें तो सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के बाद में आपका जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और आपकी ये वीकनेस नजर आए तो भी आपको पुलिस सर्विस से या आर्म फोर्स सर्विसेज से बाहर कर दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर वाले पार्ट से। ठीक है सर, आई डोंट हैव द लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, सो कैन आई फिल द फॉर्म नाउ और वेट टिल माय डॉक्यूमेंट, वेट टिल योर डॉक्यूमेंट गेट रेडी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट इन द लेक्चर वीडियो इटसेल्फ। सर ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिला तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आई हैव गिवन दिस। सर एनी एज लिमिट फॉर आईपीएस? द सेम एज आईएएस, जितना आईपीएस की लिमिट है उतना ही आईएएस के लिए, कोई स्पेशल क्राइटेरिया तो है नहीं। ठीक है सर, इन द एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज अ सेक्शन ऑफ ईडब्ल्यूएस इशू ऑफिसर नेम रिक्वायर्ड। Sir, in the application form, there is a section of EWS issued officer name required. So I have to fill the name or his post. अगर नाम पूछ रहा है तो नाम लिखो, पोस्ट पूछ रहा है उसका तो पोस्ट लिखो जिससे आपने इशू कराया है। ठीक है, इट इज मच क्लियर। सर मैं 1 अगस्त 2023 को 21 ईयर्स की होंगी, क्या मैं एलिजिबल हूं अभी? मतलब सवाल क्या है इल्मा आपका? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। सर मैं 1 अगस्त, ओनली अथॉरिटी नेम इज आस्किंग टू राइट द नेम ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है सर, मैं 1 अगस्त 2023 को 21 ईयर्स की होंगी। अरे 21 ईयर्स छोड़िए ना, आपको मैंने कितना सिंपली समझाया मैंने आपको, मतलब एज क्राइटेरिया का मैंने कितना सिंपल समझाया आपको। ब्रैकेट में चेक करिए, उस ब्रैकेट में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मतलब आप 2 अगस्त 2002 से पहले बॉर्न होना चाहिए, मतलब 1 अगस्त 2002 तक बॉर्न होना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ओके। अगर वहां से लेकर के 1991 के 2 अगस्त तक के आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, तो उतना चेक करिए ना आप, उस ब्रैकेट में आप आ रहे हैं। 21 ईयर्स का फिर से जो बेसिकली वही सर ओके सर, मेरी एग्जैक्ट 1 अगस्त है डेट। ईयर क्या है आपका इल्मा? ईयर क्या है आपका? 1 अगस्त व्हाट? 2002, तो ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। 2 अगस्त के बाद में नहीं बॉर्न होना चाहिए, यू आर एलिजिबल। 1 अगस्त 2002 आपकी डेट है, यू आर एलिजिबल। मतलब कितना डिफिकल्ट है इसको समझने में आपको। ठीक है सर, देयर इज नो स्पेस बिटवीन माई टू नेम्स लाइक जिया Arshin in 10 service. Should I fill the same? Yes, fill the same. Don't put the space. They have not given the space. You also don't put the space. It's okay. It's fine. It's absolutely fine. Okay. जिया अर्शिन आप बिल्कुल दे सकते हैं, नो इशू। जैसा लिखा है वैसा लिख दो, खेल मत करो उसके साथ में। ठीक है, कि वो हो सकता है कि वो काउंटर फायर कर जाए, तो डोंट डू दैट। अच्छा, यूडी सर, आई हैव एड्रेस ऑल द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो हमारे चैट में आया है। एनी फर्दर क्वेश्चन वांट टू आस्क बाय एनीबॉडी, और या आपको किसी क्वेश्चन पे क्लैरिफिकेशन चाहिए? यूट्यूब से क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। सिविल सर्विसेज वर्सेस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। डिटेल मैंने ऑलरेडी बताया है सर, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में पहले क्या होता था, इनका एग्जाम अलग होता था फॉरेस्ट सर्विसेज का। अब इन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए इन्होंने जो है दोनों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक किया है। दोनों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस किया है। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 3, या आप अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे।
सिविल सर्विसेज पहला ऑप्शन, यू आर ओनली गोइंग फॉर द सिविल सर्विसेज, आर यू ओनली गोइंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज, और यू आर गोइंग फॉर द कंबाइंड सर्विसेज, कंबाइंड इंडियन सिविल सर्विसेज एंड द फॉरेन सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्राइटेरिया, अगर आप दोनों साथ में देना चाहते हैं तो फॉरेस्ट सर्विसेज का क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन इन द साइंस बैकग्राउंड, बीएससी या उसके ऊपर की कोई भी डिग्री चलेगी जो साइंस बैकग्राउंड से आप होने चाहिए। ठीक है, ये मैं बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस क्राइटेरिया यू शुड लुक एट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के वेबसाइट देखिए, वहां पे उन्होंने डिटेल क्राइटेरिया नोटिफाई किया है। ठीक है, इन दैट, ठीक है, ये डिटेल क्राइटेरिया है। फॉरेस्ट सर्विसेज का जब मेंस होगा ना, तो आपके लिए आपसे अलग से फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉर्म भरवाया जाएगा। मान लो कि आप दोनों ही सर्विसेज के दोनों प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, आपने फॉरेस्ट का भी क्लियर कर लिया प्रीलिम्स, और सेम ही एग्जाम से आपने प्रीलिम्स दिया 28 अगस्त को, सॉरी 28 मई को, और आपने प्रीलिम्स फॉरेस्ट का भी क्लियर हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गया, और आपका जो है सिविल सर्विसेज का भी कट ऑफ क्लियर हो गया। दोनों का कट ऑफ अलग अलग आता है, और मैं ये भी बताता चलूं कि दोनों का कट ऑफ अलग भी आता है, और दोनों का कट ऑफ, ठीक है, दोनों का कट ऑफ से फॉरेस्ट का कट ऑफ हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, तो दोनों का कट ऑफ अलग अलग आना है। अगर आप दोनों ही क्लियर कर जाते हो, ठीक है, तो आपको फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, और इंडियन सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम अलग से भरना पड़ेगा। दोनों को डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 कहा जाता है। ठीक है, और मान लो कि आपने दोनों मेंस भी क्लियर कर लिया, दोनों के मेंस, तो आपको दोनों को इंटरव्यू अलग अलग देना पड़ेगा। खाली प्रीलिम्स कॉमन है, उसके बाद सारी चीजें अलग अलग है। मेंस भी अलग है, वो डैफ 1 भराया जाएगा आपसे, वहां पे फॉर्म अलग से भराया जाएगा, जिसमें वहां पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अलग हो जाएगा। आपको वहां पे 2 ऑप्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, एक कंपल्सरीली फॉरेस्ट्री वगैरह कुछ ऑप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा, जूलॉजी वगैरह साइंस बैकग्राउंड के ऑप्शन, लिमिटेड ऑप्शन है वहां पे, ऑप्शन सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो वहां पे अलग और यहाँ पे अलग सिविल सर्विसेज में आपको दोनों का मेंस भी अलग अलग होता है, दोनों का इंटरव्यू भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू सेशन अभी चल रहा है, तो फॉरेस्ट वाले का इंटरव्यू बाद में होगा, मतलब इन्हीं बिटवीन में कहीं पे होता है उनका भी इंटरव्यू, उनका रिजल्ट भी अलग अलग आता है। तो डू रिमेंबर दिस, ओके, दिस इज द डिटेल दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल विद रिस्पेक्ट टू, खाली प्रीलिम्स कॉमन है दोनों। ठीक है, यू गेट माय पॉइंट? ओके सर, यूडी सर, आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड द क्वेश्चन। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ प्लीज। एक्चुअली अगर हमारे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो, या ग्रेजुएशन हम जिसमें कर रहे हैं वो मेंशन नहीं है उसमें, तो उसमें क्या फिलअप करना पड़ता है? मेंशन नहीं, अदर होगा एक ऑप्शन, अदर, एंड फिर अदर, और उसके नीचे अपना जो ग्रेजुएशन का जो तुम्हारा स्ट्रीम का जो नाम है उस नाम को भर दीजिए आप। जैसे कि मेरा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज था, तो वो होता नहीं था हमारे टाइम पे, तो हमें अलग से भरना पड़ता था उससे। ठीक है, बीएमएस का। फिर बाद में बीएमएस हमने देखा कि दिल्ली, पहले बॉम्बे का स्पेशल कोर्स था जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी ही मुंबई यूनिवर्सिटी कराती थी, फिर बाद में इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी स्टार्ट कर दिया था इन बिटवीन माय प्रिपरेशन समवेयर, तो फिर वो आ गया उसके बाद में। ठीक है, तो अगर नहीं मिलता है तो यू शुड टेक इट, जो है अदर डाल करके, डिटेल डाल कर लिख दो वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि परसेंटेजेस के राउंड ऑफ के बारे में। हाँ, परसेंटेज का राउंड ऑफ का एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा आता है, अगर पॉइंट अलाउ कर रहा है वो, ठीक है, मान लो कि 95 पॉइंट समथिंग आपका आया, तो अगर वो पॉइंट अलाउ करता है कि लिख दो, तो यू राइट, इफ दे डू नॉट अलाउ यू टू राइट द पॉइंट्स इन द पॉइंट फॉर्म, मतलब 95.18 है, ठीक है, तो अगर आप 95.18 अलाउ करता है वो लिखने के लिए तो लिख दीजिए। अगर वो अलाउ नहीं करता है, इनकेस अलाउ नहीं कर रहा है आपको, ठीक है, तो अगर 91.5 है, आप 91.18 है, 91.2 है, 91.49 तक अगर है तो 91 काउंट होगा, और 91.5 या 51 है, ठीक है, तो 92 काउंट होगा। ये राउंड ऑफ होता है, इसे याद रखना सब लोग। 91 पॉइंट मतलब 0.49 हुआ तो जो पीछे का नंबर है वही काउंट होगा, मतलब 91.49 है तो 91 लिखेंगे आप अपने उसमें। ये अंडरस्टूड है एक्चुअली में, पता नहीं आप लोग ग्रेजुएशन कैसे क्लियर कर लिए, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है पार्ट। ओके, 91.5
49 तक आप 91 लिखेंगे, 91.5 या इसके ऊपर, ठीक है, 91.51 आया, 91.78 आया, 86 आया, 91.99 आ गया, तो भी आप 92 ही लिखेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि 51 के बाद में वो जो है उसे काउंट कंसीडर वैसे ही किया जाता है, ठीक है। सीजीपीए में मेरे ख्याल से पॉइंट अलाउ करते हैं वो लोग, ठीक है, सीजीपीए में पॉइंट अलाउ कर रहे हैं वो लोग, तो यू बेटर राइट द पॉइंट्स, ठीक है। जहां तक कि मुझे प्रॉपरली याद है सीजीपीए में अलाउ करते हैं वो लोग, तो प्लीज राइट इट। अगर नहीं करते हैं तो सेम क्राइटेरिया है, 6.75 है तो 6.75 है तो वो 7 हो जाएगा, 6.49 है तो वो 6 हो जाएगा। अलाउ नहीं कर रहे हैं ना पॉइंट, जनरली करते हैं डेसिमल में या पॉइंट फॉर्म में, वो अलाउ करते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये, ओके, मान लो कि चेंज कर दिया। हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए टू परसेंटेज, आई एम अनअवेयर अबाउट दिस। सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं अनअवेयर हूँ, ये टेक्निकल पार्ट है, आप प्लीज आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग सीजीपीए का, तो चेक कर लीजिए वो एक बार, ठीक है। देयर इज वन क्वेश्चन, सर is surname required with father name and mother name? I told, I given the answer of this. Why you keep on repeating the same question? Sir, should we mention surname with father and mother? Sir, how to write CGPA? CGPA का पॉइंट अभी मैंने बताया, अगर पॉइंट अलाउ करते हैं तो लिखिए, पॉइंट नहीं अलाउ करते हैं तो मत लिखिए। पॉइंट का सिंपल फंडा वही है, उसका एक्सेप्टेंस वैसे ही आता है उसका। 0.5 है या उसके ऊपर है तो वो जो आगे का नंबर है 6.5 है, 6.51 है, 6.5 है तो 7 हो जाएगा वो, 6.49 है तो वो 6 हो जाएगा, तो आप 6 लिखेंगे खाली। पर जहां तक मुझे याद है सीजीपीए में पॉइंट अलाउ कर रहे हैं। सर मेरा कुछ डाउट है, वो मैं लास्ट में करूंगा, हाँ, तो आई शुड बी हैविंग दैट मच टाइम कि आप लास्ट में करेंगे, ठीक है। समबडी हैज रेज्ड द हैंड। यस सर। हाँ सर इसमें जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज मांगता है वो सिर्फ ऑनर्स का होना चाहिए, ओवरऑल जितना सब्जेक्ट सब्सिडरी प्लस सबका? नहीं, जो फाइनल आपका परसेंटेज है ना वो होना चाहिए। मतलब फाइनल परसेंटेज सिर्फ ऑनर्स का, ओवरऑल 3 इयर्स का, या सर सब्सिडरी का जो भी है ओवरऑल मिला के उसमें? जो फाइनल लास्ट ईयर में आपका कौन सा कितना आया है? तो फाइनल लास्ट ईयर में 964 है। परसेंटेज फॉर्म में कितना है? 64%। तो उतना लिख दीजिए। तो सर ये सब्सिडरी को भी मिला के है, अगर ऑनर्स की ओनली बात करें तो फिर 494 ही है। सब्सिडरी को मिला के आपको जो फाइनल बनता है आपका, मतलब जो लास्ट आपका जो 6 सेमेस्टर में, जी ऑनर से तो 8 सेमेस्टर होगा, जी सर। तो 8वें सेमेस्टर में जो एक तो 8 सेमेस्टर का बनेगा, ठीक है, 8वां जी सेमेस्टर का, और एक बनेगा जो पूरा ओवरऑल है आपका, ठीक है, 2 बनता है, जी सर। ओवरऑल चाहिए, ठीक है। ओके। और किसका क्वेश्चन है? अब भाई 54620 आपका क्या क्वेश्चन है? आस्क। सर इनका यूडी सर, इनका क्या क्वेश्चन? सर मेरा कुछ डाउट है, मैं वो लास्ट में करूंगा। हाँ तो प्रियांशी, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। So, good evening, sir. गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और ज्योग्राफी, लेकिन तीनों वहां पे एक साथ तो नहीं आते सर ऑप्शन में, तो फिर क्या सिलेक्ट करूंगी? हिस्ट्री ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में? हाँ सर, इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स नहीं था मेरा सर, जनरल प्रोग्राम था। जनरल प्रोग्राम, तो तीनों का लिख दीजिए। तीनों अलाउ कर रहा है लिखने के लिए? नो सर। तो आपका मेन सब्जेक्ट कौन था तीनों में से? मेन सर तीनों के ही काउंट हुए हैं, तीनों साल। तो तीनों साल के लिए, मतलब फाइनल आप पूछना क्या चाह रहे हैं? सब्जेक्ट लिखना पूछना चाह रहे हैं या हाँ सर, जैसे वो बोलेंगे परसेंटेज कि पूछना चाह रहे हैं? जब वो बोल रहे हैं ग्रेजुएशन किस में किया, तो वहां पे ओनली हिस्ट्री लिखूं या ज्योग्राफी लिखूं या इंग्लिश लिटरेचर? आपके ग्रेजुएशन का नाम क्या है? सो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। तो बीए लिखिए। ओके। मतलब कि ग्रेजुएशन का नाम बैचलर है तो बैचलर लिखिए ना, तो सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं आप? सर उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। उसमें तीनों लिखना है।
ओके सर, तीनों। तीनों लिखना है। जनरली वो मास्टर्स में पूछते हैं एक सब्जेक्ट के बारे में, वो मास्टर्स हाँ में सर। एक सब्जेक्ट होता है, तो तीनों हाँ लिखे, सर। उसमें उसमें स्पेस देगा वो तीनों लिखने के लिए, राइट ऑल द थ्री। ओके सर, ओके, थैंक यू एक सर। को लिखना है। हाँ, ओके। अगर से मान लो कि ये आपको तीनों ऑप्शन लिखने के लिए वो नहीं दे रहा है, तो यू कैन चूज एनी वन, कोई भी एक चूज कर लीजिए आप। इन्फॉर्मेशन गलत मत दो, ये तीन है, हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है और एक इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए अगर वो तीनों अवेलेबल है तो। ठीक है, अगर तीनों अलाउ नहीं करा तो कोई एक पूछ लीजिए आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर रॉन्ग मत भरिए, झूठ मत लिखिए, बस वो लिख दीजिएगा कि हाँ ये है, आपने अलाउ नहीं किया फॉर्म में तो हमने नहीं भरा, आप अलाउ करते तो हम तीनों भर देते। हमारे टाइम पे क्या होता था कि सब्जेक्ट लिख देते थे हम लोग, तो हम लोग लिख देते थे सब्जेक्ट। जैसे कि माई ओनर्स वॉज देयर इन बैचलर मैनेजमेंट स्टडीज में, तो हमारा एक स्पेशलाइजेशन होता था एक सब्जेक्ट का, तो माई स्पेशलाइजेशन वॉज इन मार्केटिंग, तो फिर मैं मार्केटिंग लिखता था उसमें से। हाँ ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, सारे सब्जेक्ट नहीं लिखता था, तो दैट वाज वैलिड। आई एम नॉट गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, I can give the half information but not the wrong information, and that half information is because you have not allowed me to give the full information. ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे लिखा है। आप अलाउ करेंगे तो मुझे लिखने में क्या है, मैं 2 दिन बैठ के फॉर्म ही भरूं। ठीक है, यूडी सर, आई गेस I have dealt with all the questions and all the detail with respect to the notification, and I Yes, sir. think we Most can, of the हाँ questions have been answered. हाँ, अगर किसी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क और we'll take the session. if anybody still have a question they can ask, otherwise we will be ending this session. Okay, and thank you very much for sir, can we end the session now, because I guess अभी कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है। यूट्यूब पे अगर कोई क्वेश्चन है तो they can ask. I'll just check. Sir. हाँ, Answered, sir. Mostly answered. almost answered sir. Okay, so I'll take a leave now sir. Thank you very much for all the students. Those who have any question with respect to the notification, still you can connect with us at ICRA IAS. Again, directly call or you can raise your, we'll meet again. ठीक है, हमें लगेगा कि अभी बच्चों का कंसर्न ज्यादा है, we'll meet again, not an issue for that. Okay, and ICRA is there for it, for your help. Okay, you can see, you can get into touch with the ICRA and get your question resolved. Do not fill any wrong information, do not fill any fraudulent information before filling the form. If you have any problem understanding any technicalities, please fill the form properly. Okay, क्योंकि once the form is filled, ठीक है, it is not going to change, मतलब वो चेंज करने का अलाउ तो करेंगे वहां पे। ठीक है, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर के आप जो है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने फॉर्म भर दिया, अब तो क्या ही दिक्कत है मुझे, ऐसा ना हो। ठीक है, और ओके, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, थोड़ा सा लेट भरिए फॉर्म, कोई बात नहीं, गेट ऑल द डिटेल्स, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, देन फिल द फॉर्म। ठीक है, क्योंकि एक बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गया आफ्टर द करेक्शन पीरियड भी बाद में वो चेंज नहीं होता है। और बहुत मेहनत किया आपने, कुछ आपसे ओवरलुक हो गया, तो आप उसे प्रिंट आउट कर लीजिए, एक एक चीज फिर से देख लीजिए कि आपने फॉर्म में क्या भरा है। ठीक है, प्रिंट आउट करके निकाल के देखिए, आराम से रिलैक्स होकर के बैठ करके निकाल के देखिए आपने क्या भरा है। आपको कहीं लगता है कि कुछ मिस्टेक किया, आप फिर से फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, हाँ, 543, प्लीज whenever you come to the join to the meeting, please enter your name. Okay, 1 मिनट सर, क्या बात है बताओ। So this person has some question. 546, नाम नहीं है आपका बिल्कुल भी। No problem, sir. I'll take care of it. Kindly get in touch with us, and हम अलग से कर लेंगे, और write it quickly in the chat box. हाँ, if you want to write, so write it quickly because I have to take other class also. My name is Sangin Srivastav. Okay, what is your question? आप अपना क्वेश्चन बताइए। अगर मार्कशीट में
अगर मार्कशीट में करेक्शन करना है तो क्या उस टाइम फॉर्म भर सकता हूँ? मार्कशीट में पहले करेक्शन करवा लो, ठीक है, मालूम पड़ा आपने फॉर्म भर दिया और करेक्शन नहीं हुआ तो आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई टू गेट द करेक्शन डन एज सून एज पॉसिबल. यू हैव 17-18 days एंड इफ यू आर श्योर दैट द करेक्शन विल बी डन, ठीक है, करेक्शन हो जाएगा, आपको पता है, तो नए इन्फॉर्मेशन के साथ में आप फॉर्म भर दीजिए जो करेक्शन जिस इन्फॉर्मेशन से आप करेक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है। और अगर तुमको पता है कि अनसर्टेनिटी है कि ये करेक्शन होगा कि नहीं होगा, डोंट फिल द फॉर्म unless you do not do the correction because UPSC उसके लिए entertain नहीं करेगा. Okay, so UD sir, I'll take a leave now. Thank you very much. Okay, sir, मैं ऑफिस था Thank you, इस. sir. Thank you so much for your time, sir. Thank you, students, for joining us today. अगर कोई भी बच्चे हैं जो ये देखना चाहते हैं वीडियो फिर से एक बार, so they can visit www.ikrayas.com and also available on our YouTube channel Ikrayas. एंड इसके अलावा भी और कुछ है तो जैसे सर ने कहा आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स या मेंटर से टेलीग्राम देख सकते हैं. यू कैन सेंड इट टू मी एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे.